So Samar, tell me something about yourself. Uh, Good afternoon, first of all. My name is Samar Rajput. I'm from Lucknow. I'm doing my bachelor's in electrical engineering from BN College of Engineering and Technology, and I have done my summer training from Rolling Stock Workshop, Northern Railways, and uh, sorry, currently I'm looking for a job. Okay. Thank you. Samar, you have mentioned in your CV about the PLC. Yes. So what is PLC? So PLC is basically programmable logic controller, which is used in industries for automation purpose. Okay. How many type of PLC do you know? So there are basically three main types of. First of all, first is compact, second is modular type, and third is rack type. Rack type. Okay. What is the major difference between the modular and rack type? So in rack type, we add more racks for other purposes. If we want to increase our automation in industries, or we want to add more features to operate uh, more devices or more sensors or more machines. So we use model rack type PLCs. Okay. And when we use the modular? सर मॉडलर हैव लिमिटेड सर इन लिमिटेड इनपुट आउटपुट पोर्ट्स सर, मतलब उसमें सर ज़्यादा हम लोग नहीं ऐड कर सकते हैं, एक लिमिट होगी सर, उसके बाद जो है उसमें नहीं ऐड कर सकते। उसमें ऐड नहीं कर सकते। ओके। आप इस पैनल में लगे हुए कंपोनेंट को एक्सप्लेन कर सकते हैं? सर यस श्योर, बताइए। सर दिस पैनल इंक्लूड्स बेसिकली four outputs and 1 2 3 4 8 inputs. Okay. Sir, it consists of one 2-pole MCB and two NOPBs and one NCPBs, one selector switch, two toggle switch. And what's that? So this is relay channels. How many channels are there? So there are 4 channels. And what is this? So this is logo PLC. PLC. And what is that? SMPS. And this is voltmeter, digital voltmeter. So did you learn the switchgear and protection? Yes, sir, I know. RLC. Yes. So could you explain and name the 10 major used component in switchgear and protection? Major used component in switchgear and protection. Okay, sir. First is MCB, MCCBs, and relays for overload protections. Switches like NOPB, NCPBs, selector switches, and so relays हो गया, contactors, and if there is the earth leakage, what component required? So ELCB. To protect the motor from the overload, what component required? Sir, what? What the name of the component if we want to protect the motor from the overload? Sir, overload relays. OLR. OLR. What is the major difference between the soft starter and VFD? Soft starter and VFDs. Sir, soft starter basically includes solid state devices to operate machines, and sir, VFD is a device by which we can control or we can adjust the speed of motor as per our requirements. Okay. PLC आपने कौन सी यूज की है? Okay. Sir, modular type. PLC का नेम बता सकते हैं आप मैन्युफैक्चरर का? Yes, sir. Siemens manufacturer. और so the type S7200 Smart and the CPU is ST20. And more PLC did you use? Yes. Delta? Yes, Delta. कौन सी? Sir, आपके CV में मेंशन है ये चीज, डेल्टा की कौन सी PLC यूज की है आपने? Sir, Delta SE7. SE series. और ये कौन सा है? Sir, it is Siemens logo. Siemens लोगो। इसका CPU पढ़ के बता सकते हैं आप क्या है? नहीं देख पा रहे हैं आप? देखिए यहाँ पर देखिए 24CE. 24CE दिख रहा है ना? क्या है इसका CPU? 24CE. ये क्या चीज़ होती है? Sir, it is VFD. VFD कितने HP की VFD है ये देख के बता सकते हैं आप? Yes. Sir, 1 HP. 1 HP. Yes. इस चीज़ को क्या कहते हैं हम लोग? Sir, BOP. BOP को फुल फॉर्म बेसिक ऑपरेटिंग पैनल। पैनल। यहाँ से क्या करते हैं हम लोग? सर हम लोग इसे मैनुअली ऑपरेट करते हैं। अच्छा, मैनुअली ऑपरेट करते हैं। मैनुअल ऑपरेशन होता है। मैनुअल ऑपरेशन प्लस कमीशनिंग। पूछिए सर।
समर, ये Yes, sir. बताइए कि आप इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन जैसे मेंशन किया है आपने, जी सर। तो इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन आप क्यों कर रहे हैं? सर अगर हम सिर्फ पहली चीज़ थोड़ा ऑटोमेशन को ले करके फैमिलियर होना, ठीक है, बेसिक ऑटोमेशन जो है उसको फैमिलियर होना। एंड सर इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन, एज आई एम इलेक्ट्रिकल इंजीनियर सर, ये हमें इट इज़ बेसिक नीड फॉर इलेक्ट्रिकल इंजीनियर टू नो अबाउट इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन। ठीक है, तो आप इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन में क्या क्या चीज़ें सीख रखे हैं आप? सर एक ओवरव्यू बताएं। यस, RLC डिज़ाइनिंग एंड सर I have worked on PLC and VFD, sir, and a little bit of AutoCAD. Not AutoCAD. electrical, AutoCAD. तो ठीक है, जैसे आपने जनरल स्किल्स में मेंशन किया है Yes sir. प्लानिंग एंड कोऑर्डिनेशन, Yes sir. ठीक है, तो आपको एक तरीके से इस तरीके से टास्क मिलता है कि मान के चलिए एक पैनल आप डिज़ाइन कर रहे हैं, Yes sir. ठीक है, तो पैनल को आपको 2 दिन में डिज़ाइन करना है। एक कोई थर्ड पार्टी है जो क्या कह रही है कि आपको 2 दिन में पैनल बना के देना है, तो आप क्या प्लानिंग करेंगे और कैसे कोऑर्डिनेशन सेट करेंगे? ओके सर। सर फर्स्ट ऑफ ऑल पहले उनकी रिक्वायरमेंट हमें चेक करनी होगी कि मतलब वो पैनल में उनकी क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, ठीक है सर। देन मैं अपना टीम पहले प्लान करूँगा कि मेरी टीम में कौन कितने पर्सन है और कौन सा पर्सन किस चीज़ में स्पेशलाइजेशन ऑक्यूपाई करता है। सर डिज़ाइनिंग के लिए अलग पर्सन होगा, RLC डिज़ाइन के लिए अलग होगा। एंड सर उसका जो मेन पैनल जो जैसा स्ट्रक्चर शो हो रहा होगा, मतलब कि जैसे सर ये सामने से दिख रहा है कैसा दिखने में होगा, उसके लिए एक अलग पर्सन को। ठीक है, तो आपने एक समर ट्रेनिंग में मेंशन किया है। यस सर। कहाँ पे समर ट्रेनिंग किया था आपने? सर रोलिंग स्टॉक वर्कशॉप, नॉर्दर्न रेलवेज। इसमें क्या सीखा आपने? सर वहाँ पे 3 फेज इंडक्शन मोटर थी जो बेसिकली यूज़ हो रही है कन्वेंशनल इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव में। सर वहाँ पे बेसिकली जो मोटर्स यूज़ हो रहे हैं वो कूलिंग पर्पस पे यूज़ हो रहा है, वो चीज़ मैंने सीखी। एंड सेकेंड थिंग इज़ उसकी टेस्टिंग, जैसे इंसुलेशन टेस्ट होता है एंड हॉट पॉट टेस्ट होता है एंड सर पोटेंशियल टेस्ट होता है जिसको हॉट पॉट टेस्ट बोलते हैं, रेजिस्टेंस टेस्ट होता है, इस तरह के सर टेस्ट होते हैं। और वहाँ पे POH होता है, POH और IOH होता है, पीरियोडिक ओवरहॉलिंग एंड इंटरमीडिएट ओवरहॉलिंग सर। और जो POH होती है सर वो 8 ईयर्स पे होती है हर एक इंजन की, और जो IOH होती है वो 4 ईयर्स पे होती है। ठीक है, और जैसे कि क्या ऑटोकैड और ऑटोकैड इलेक्ट्रिकल में कुछ डिफरेंस होता है? सर यस सर होता है। yes. क्या? सर फर्स्ट थिंग कि सर ऑटोकैड जो बेसिक है वो सर हमें डिज़ाइनिंग सिखाता है। एंड जैसे ऑटोकैड इलेक्ट्रिकल, ऑटोकैड सिविल, ऑटोकैड मैकेनिकल, ये जो अलग अलग हो रहा है सर वो उन सेक्टर्स या फिर कह सकते हैं सर जो जैसे ऑटोकैड इलेक्ट्रिकल है वहाँ पे हम इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स की बात कर रहे होंगे, वहाँ पे हम इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स को डिज़ाइन कर रहे होंगे सर, वो चीज़ को लेके होता है। और जो बेसिक ऑटोकैड होता है वो हमें बेसिक डिज़ाइनिंग सिखाता है कि हम कैसे डिज़ाइन करें। बिल्कुल ठीक है। और आपने CV में कहीं मेंशन नहीं, कौन सा ईयर है आपका? 4th ईयर। 4th ईयर। तो CV में आपका कोई मेंशन नहीं कि आपने कोई प्रोजेक्ट पे काम किया है, जैसे कि कॉलेज में मिनी प्रोजेक्ट इस तरीके की चीज़ें होती हैं, तो आपने क्या उस चीज़ को किया था? Yes sir, I have done. कौन सा प्रोजेक्ट था? So that was water level indicator. क्या प्रोसीजर था और कैसे इम्प्लीमेंट किया था आपने? सर उसमें सर एक हम लोगों ने बेसिक इंडिकेटर्स यूज़ करे थे एंड कुछ ट्रांजिस्टर्स यूज़ करे थे। उसका एक सर्किट ड्रॉ किया गया था और 4 आउटपुट्स निकले थे जो लेवल शो कर रहे थे, मीडियम, लो एंड हाई एंड फुल पे जैसे हो रहा था सर मोटर ऑफ हो जाएगी कुछ। तो ट्रांजिस्टर कौन सा था? सर 2 and 4 times 2। 2 and 4 times 2। ठीक है, तो क्या कोई जैसे ट्रांजिस्टर की बात हो रही है, सर तो कोई ऐसी भी PLC होती है जिसमें ट्रांजिस्टर यूज होता है या उस तरीके कुछ चीज़ें पढ़ा होगा? सर वो स्विचिंग बेसिस पे सर उसका ये तो कितने तरीके की स्विचिंग होती है? सर 2 टाइप्स की होती है। फर्स्ट होती है सर रिले बेस्ड स्विचिंग होती है PLC एंड सेकंड इज ट्रांजिस्टर बेस्ड स्विचिंग होती है। अच्छा, तो ये दोनों बनाने का पर्पस क्या है? एक ट्रांजिस्टर से बना रहे हैं, एक रिले से बना रहे हैं, दोनों काम एक ही है, तो क्यों कर रहे हैं उस चीज़? ओके सर, जैसे ट्रांजिस्टर हमें बहुत
मिली सेकेंड में स्विचिंग प्रोवाइड करता है। ठीक है। सर उसी तरह अगर हम उसमें रिले चैनल में बात करें सर, वहाँ पे हमें बहुत रैपिड स्विच नहीं मिलता है इस वजह से। एंड सर ट्रांजिस्टर जो होता है वो सॉलिड स्टेट डिवाइस होता है, उस वजह से उसमें कोई मोमेंट्री पार्ट होता नहीं है, तो उसमें मेंटेनेंस ज़्यादा चाहिए नहीं होती। एंड अगर हम रिले चैनल की बात करें सर, उसमें मोमेंट्री पार्ट होते हैं जिसमें वो स्पार्किंग की वजह से मेंटेनेंस रिक्वायरमेंट हो जाती है। ठीक है। और आप ये थोड़ा सा बताइए कि ये जो रिले होता है और एक कॉन्टैक्टर होता है, ये सर। तो दोनों में क्या डिफरेंसेस हैं और किस तरीके का डिफरेंसेस है? ओके। रिले सर बेसिकली हम लोग सिंगल फेज में यूज़ करते हैं। हाँ, अगर हम 3 पोल की बात कर लें तब भी? सर एम्पियर रेटिंग फिर हो जाएगी, एम्पियर रेटिंग पे वैरी करेगा। हाँ ठीक है, बताइए आगे। ठीक है। एंड सर कॉन्टैक्टर जो बेसिकली होता है सर, उसमें वो लो एम्पियर टू हाई एम्पियर स्विचिंग हमें प्रोवाइड करवा देता है। तो जैसे मान लीजिए 3 फेज हमको पास करना है, ठीक है फॉर एग्जांपल, तो हमारे पास 3 पोल रिले है। 3 पोल रिले। हाँ ओके। ठीक है। और हमारे पास एक कॉन्टैक्टर है। यस सर। तब भी क्या कोई डिफरेंसेस है? नो सर। तो हम कॉन्टैक्टर की जगह पे रिले यूज़ कर सकते हैं? कॉन्टैक्टर के प्लेस पे रिले? हाँ 3 पोल नो सर, नहीं कर सकते, क्यों? सर रिले के कॉन्टैक्ट्स सर उतने करंट कैपेबल नहीं होंगे जितना कॉन्टैक्टर के कॉन्टैक्ट्स होते हैं। तो Samar, यस सर। what do you mean by the HMI? Okay. HMI sir is basically human machine interface by which human interacts with machine. Okay, very good. आपने किस HMI पर काम किया है? Sir DOP soft, sir DOP soft 107 EV. आपने क्या क्या प्रोजेक्ट्स बनाए हैं, उस पर क्या क्या प्रोग्राम किए? Okay sir. Sir first I have done signal, traffic signal. ठीक है, Thank you sir.